श्री तारतम सागर प्रकाश गुजराती 29 प्रकरणको श्री लक्ष्मीजीनो दृष्टान्त। હું જાનું નિદા એકાલી લઉં તની તના સુખ સગલા સહું એ સુખ બીજા કોને ન દઉં ભલી ભલી તમને શ્યાને કહું એ બતન કાંઈ એમાં ન ક્યાંક એ બતન કાંઈ એમાં ન કહેવાય જીવ મારો માએ દુખાય મુનિગણ બીમાસન થાય પણ જાક્યો મારો ન જકાય ધની કહાવે તો હું કહું નહીં તો એ નિદ કાંઈ એમ ન દઉં દેતા મારો જીવન નિસરે એ બચન કાંઈ મુને ન બિસરે મેં લીધા કથનાઈ કરી શ્રીધની તને ચરણે ચિત્ત ધરી હું ગણીએ રાખું અંતર પણ સાગર પૂરા પ્રગટ કરે ઘર ધની કહાવે અંતર્ગત રહી કયાની સોવા કાલભૂતને થઈ નહીં તો એ વચન કેરા પ્રગટ થાય કે તકનું કાલ જો કપાય રખે જાનું વચન કયા અચેત કહેતા જીવે દુઃખ દીતા અનેક જ્યારે જીવશું બિચારી જોયું મન જે આવું ક્યાં કહું છું વચન એક લાભ મારી બુદ્ધિ ન નિસારે પણ તને આપું પ્રગટ કરે હવે જો સાત કરો કાંઈ બાલ તો પુરાણ સવાલ્યો ને અચલ મારે વચન છે જો ગાનું જો કાંઈ રગ્રહે તો આપનું એ વચન ઉપર એક કહું વિચાર સાંભળો સાત મારા ધામના આધાર ધડથી મસ્તક કોઈ અલગું કરે તો અરદ વચન મુખથી ન પરે જો કોઈ સારે સગલા સંધાન તો અરદ લવો ન કહેવાય નિરવાન સાત માથે કહું સગાઈ જાની થની ઓળખ જો ઘર રુદ્યાની એમાં હાથ જાલીને બીજો કોઈ ન દીએ અમે એમાં દેતા અભાગી ન લીએ તમે સાત મારા શિરધાર હવે આ દૃષ્ટાંત જોજો વિચાર પાદર એક કહું પ્રકાશ સુખજી પાએ પૂરા ભૂસાખ યહ જોઈને તાલો ભરમ જીવ કાંઈ કવે કરો નરમ વચન જીવ શું કરો વિચાર ત્યારે તથકીને જીવ ઓળખશે આધાર ઓળખીને તાલો અંતર આપું સંભાળો ઘર હવે ઘર તની કે કહું બાત વચન વિચારી જોજો પ્રકાશ હવે સાંભળો આ પાદરું દૃષ્ટાંત જીવ જગાવી જોજો એકાંત ચૌદે ભવનનું કહીએ દાની લીલા કરે વૈકુંઠ વિશે ઘણી લક્ષ્મીજી સેવે દિન રાત એ નીચે મોતી વિખ્યાત જે જીવ વાંચે પોતે એ તકાર તે સેવે શ્રી પરમેશ્વર બ્રહ્માદિક નારદ છે દેવ બીજા સુર નર અનેક કરે એની સેવા બ્રહ્માંડ વિશે કેતલા લઉં નામ સૌ કોઈ સેવે શ્રી ભગવાન સેવંતા ન પામે પાર એ લીલા એ નીચે અપાર આગે સેવા કીધી છે ગણે તે જોજો વચન સુખજી તને યહ છે એવો સમરથ સેવકના સારે અર્થ હવે યહ તણું જોજો જ્ઞાન મોતી મતનું ધની ભગવાન યહ છે એવો સમરથ સેવકના સારે અર્થ હવે યહ તનું જોજો જ્ઞાન મોતી મતનું ધની ભગવાન એક સમય કરે બેઠા ધ્યાન બિસરી શરીર તની બિસરી શરીર તની સુદર્શન એ તો સજીવે ચિતવણી કરે પણ બહાર કે એને ખબર ના પડે એને સમય ધ્યાન થયું અતિ જોર પ્રેમ તની ચંપાની કોર લક્ષ્મીજી આવે એને સમય મન અજરજ પામે બિસમે આવે લક્ષ્મીજી ઉભા રહ્યા શ્રી ભગવાનજી ત્યાં જાગૃત થયા લક્ષ્મીજી કરે વિનતી અમે બીજો કોઈ દેખતા નથી એનું તમે કરો છો ધ્યાન
તો મુને કહો શ્રી ભગવાન મારા મનમાં થયો સંદેહ કઈ પૃથવો મુને ક્યાં બસે ને કયો થામ તે મુને કહો શ્રી ભગવાન એ લીલા સાંભળ શ્રવણે ભલી ભલી લાગો ચરણે સાંભળ લક્ષ્મીજી કહું તમને એ આગે શિવે પૂછ્યું મને પણ એ લીલાની મુને ખબર પણ એ લીલાની મુને ખબર જ નથી તો કેમ કહું તમને મુખ થકી કહું તમને સાંભળો મારી વાત એ વચન રખી મુખથી કરો પ્રકાશ લક્ષ્મીજી તમે કહો તેમ કરું મારું આપ નથી કાંઈ તમથી પરું મુખથી વચન રખે ઓચરો નહીં તો ઘણું થશે ખરું 14 ભુવનની પૂછો વાત તે તમને કહું વિખ્યાત રખે અસંગાણું એ રખે રાખો સંદેહ લક્ષ્મીજી તમે કરો કરાર મારા મુખથી વચન ન આવે બહાર ત્યારે લક્ષ્મીજી દુકાના ઘણું મનસ જાણે હું કે પેરે કરું મોસુતા રાખ્યો અંતર હવે કરીશ હું કે પર ને આંસુ બહુ જલ જારે અને બલી બલી રમા વિનતી કરે ધનીએ અંતર તા મેં ન કમાએ જીવ મારો આકુલ વ્યાકુલ થાય એ દુઃખ તમે સમજો ન જાય અને કાલ જડ મારું કપાય કંપમાન થઈ કલ કલે કરે નિશ્વાસ અંતસ્કર ન ગલે હવે જો ધની કરો મારી સારા તો એ બચન કે નિરાધાર તમે ઘણું એ મુનિ વાર્યા સહી અનેક પેરે શીખા મન કહી મન મારો જીવ કેમે નવો રહે લક્ષ્મીજી બલી બલી એમ કહે ત્યારે બલી બોલ્યા શ્રી ભગવાન લક્ષ્મીજી તું નિશ્ચય જાન જો પોતાનો પોત કરો પ્રકાર તો એટલું તમે જાનું નિરાધાર મારી જીવાએ ન બોલે યા વચન યા દૃઢ કરો જીવને મન હવે લક્ષ્મીજી કહે સાંભળો રાજા મારા જીવને ઉપરની હતી દાદ શુભાંગ તમારો ધની કાંઈ અપ્રાપત દિશે અમતની હવે શરીર મારું કે મરાય જીવ મારો મુને ઘણું દે હવે આજ્ઞા માગું મારા ધની કરું આરંભ તપસ્યા તની ત્યારે ભગવાનજી બોલ્યા તત્કાલ લક્ષ્મીજી મલાવો વાર ત્યારે કલ્પ્યો જીવ દુઃખ અનંત કરી ત્યારે બેરાગ શોક મનમાં ધરી જીવને આશા પૂરણ હતી ઘણી જાનો મુને છે નહીં દિયે મારો ધની શરણે લાગી લક્ષ્મીજી ચાલ્યા અને રુદન કરે જાય પાલા પલ્યા એને તમે બ્રહ કીધા હતી જોરા તેઓ કેતલ કહું બકોરા એક થામે બેતા દમે દેહ શ્રી ભગવાનજી પૂરણ સ્નેહ બાય તડકો તાડક ગણે કરે તપસ્યા જોર હતી ઘણી શનિધારી બેતા એકાંત એટલે 7 થયા કલ્પાંત ત્યારે બ્રહ્માને ક્ષીર સાગર મળી આવ્યા વૈકુંઠ ભગવાનજી બની એ બડો સ્વામી ચૌત પાત લક્ષ્મીજી તપ કરે કલ્પાંત 7 ત્યારે ભગવાનજી એમ બોલ્યા રહી જે બાંક અમારો કાંઈ એ નહીં સ્વામી તો એ બચન તમને કહે બાઈ તો લક્ષ્મીજી ઘણું દુઃખી થાય એ બળી રોષ તમે માં ધરો લક્ષ્મીજી પર દયા કરો તમે સ્વામી મોટા દયાલ લક્ષ્મીજી દુઃખ પામે બાલ લખીનો એક મલાવો બાર લક્ષ્મીજી તેડો તત્કાલ શરણ ગયા ત્યાં ક્ષીર સાગરે બલી બલી બ્રહ્મા વિનતી કરે લક્ષ્મીજી લાગે ચાલો સહી તેડી આવીએ ત્યાં લાગે જઈ ત્યારે આવ્યા ચાલી શ્રી ભગવાન લક્ષ્મીજી બેઠા જેણે ધામ ત્યારે લક્ષ્મીજીએ કીધા પર નામ ત્યારે બલી બોલ્યા શ્રી ભગવાન લક્ષ્મીજી તમે ચાલો કરે ત્યારે બલી રમાબાની ઓછરે મારા ધની તમે કહો તે જ વચન જીવ ઘણું દુઃખ પામે મન
જો તપ કરો કલ્પાંત એક અભિષા તો ન ભલે જીવ્યા એમાં કહે જગદીશા પણ દેખાડી હું તેને કરી ત્યારે તમે લેજો ચિત્ત ધરી ત્યારે બ્રહ્માને ક્ષીરસાગર બે લક્ષ્મીજી વચન કહે લક્ષ્મીજીને વચન કહે લક્ષ્મીજી ઉતો તત્કાલ દયા કીધી સ્વામી દયાલ હવે રાખે તમે અત કરો આનંદ મનમાં આદિ ગણો ધરો ત્યારે લક્ષ્મીજી લાગ્યા ચરણે એમ તેડી આવ્યા આનંદ અતિ ગણે બ્રહ્માને ક્ષીરસાગર બોલ્યા શરણે લાગી અચાનક આવ્યા હવે બિચાર તમે જોજો સાથ ન બલી જીવ્યા વૈકુંઠ નાથ ગ્રહી બસ્ત બારે કરી જાન નિત વચન ન કયા નિરવાન નહીં તો વૈકુંઠ નાથ ને કે ખબર બિના તાર તમ સુંજાને મૂલ ઘર બીજી ખબર કાંઈ એ ન કઈ તો પણ નિદ બારે કરી ગ્રહી તો પણ નિદ બારે કરી ગ્રહી ભારે બિના ભાર ન ઉપડે મુકતી વચન જુઆ કેમે ન પડે જ્યારે થયો કૃષ્ણ અવતાર રૂકમણી હરણ કીધું મુરારા માધવપુર પરણ્યા રૂકમણી થવલ મંગલ ગાય સુહાગની ગાતા ગાતા લીધું બ્રજનું નામ ત્યારે પાછા પોમ પડ્યા ભગવાન ત્યારે સૌ કોઈ પામ્યો મન અચરજ એમ લક્ષ્મીજીને દેખાડ્યું બ્રજ સમા થઈ બેઠા ભગવાન લક્ષ્મીજીની એમ બાજી હામ એ બિચાર તમે જોજો રહી એ લીલા સુખજીએ કહી જે લીલા કીધી જગદીશ તે માએ આપન ઉતા સરીખ તો વચન તમને કહે બાય નહીં તો અરદ લવો નવો પ્રગટ થાય આ બ્રજવાલો બાલો ને એવા વચન આપણને કહે છે જે રસમાએ રમાડ્યા જેને પ્રગટ લીલા કીધી તેને શ્રીધામ તના દની કહે બાય તે આવી બેઠા આપણને માહે તેમાંથી તમને કહ્યું દૃષ્ટાંત જીવનનું વચન બિચારો એકાંત ઠેકાનું વૈકુંઠ વિશ્રામ કેવા વાલો શ્રી ભગવાન લક્ષ્મીજી ત્યાં શ્રોતા થયા કેટલું ખપ કરીને રહ્યા તો એને પામ્યા એક વચન અને તમે ક્યું લઈ બેઠા છો ધન હજી ન તાલો તમે બરમ અને જીવ કાંઈ નવો કરો નરમ આ નવો તન પૂરી કહીએ નગરી જ્યાં શ્રી દેવચંદ્રજીએ લીલા કરી આ પ્રગટ વચન કિલ્લા અપાર તો ન બલી તમને સાર અમલ ઉતારો તમને જોપે કરી અને જીવ જગાવો વચન ચિત્ત ધરી માયા જુઓ તમે અલગા થઈ તાર તમને અજવાલે રહી જે બાની શ્રીદાનીએ કહી તે જીવને વચન કેમ દીધે નહીં હવે જીવ સગલાને કરો હાથ અને ઓલકો પ્રાણનો નાથ હવે એ તલ જીવ શું કરો વિચાર જે કેહા વચન કયા આધાર જ્યાં લાગે જીવન બિચારે મન માય તો ચપડે ઘરે જેમ છાતો થાય હવે ઇન્દ્રાવતી કહે સાંભળો બાત ચરણને લાગો મારા દામના સાથ ભલી ભલી નહીં આવે એ અવસર રકે હમ લઈ જાગો ઘર થોડા માએ કહું છું અતિ ઘણું અને જાણ્યું ધન કા નિગમો આપનું આગે આપન બેલા થાય તો શ્રી દેવચંદ્રજીએ બંધાયા નહીં તો કેમ બનશે આપણને એ જો રાખ્યો હો તો આપણને સ્નેહ હવે ભલે આવ્યા બીજી દેહધારી આપણના ઉપર દયા અતિકારી ચેતન કરી દીધો અવસર લઈ લાવને જાગીએ ઘર મનોરથ સર્વે પૂર્ણ થાય જો આ દ્રષ્ટાંત જુઓ જીવો માહે તેમાં ઇન્દ્રાવતી કહે ફરી ફરી જો ધનીએ કૃપા તમને કરી જો ધનીએ કૃપા તમને કરી મનોરથ સર્વે પૂર્ણ થાય
जो आ दृष्टान्त जुओ जीव माहे तेमाथि इन्द्रावती कहे फरी फरी जो धनिए कृपा तमने करी जो धनिए कृपा तमने करी। चौपाई 68 प्रकरण 29 चौपाई 741। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकाश गुजराती को 29वां प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। इंद्रावती कहती हैं, मेरी इच्छा थी कि तारतम ज्ञान रूपी अखंड धन मैं अकेले ही प्राप्त करूं और धनी जी के संपूर्ण अखंड सुख मैं ही ग्रहण करूं, अन्य किसी को न दूं। तुम्हें बारंबार इनके विषय में किस लिए कहूं। ये वचन इस प्रकार नहीं कहे जाते। इनको कहते हुए मेरा जीव अंदर से दुखी होता है। मैं बहुत विचार भी करती हूँ, परंतु यह अखंड वाणी रूपी धन रोकने पर भी रुकता नहीं है। धामधनी कहलवाते हैं, इसलिए ही कह रही हूँ, अन्यथा यह अखंड धन इस प्रकार नहीं दे देती। ऐसी अखंड वस्तु को देने में मेरे प्राण निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये अखंड वचन धनी जी से प्राप्त किए हैं। यह घटना मुझसे भुलाई नहीं जाती। इस अखंड धन को मैंने धामधनी के चरणों में चित्त लगाकर कष्टपूर्वक प्राप्त किया है। इसलिए मैं इसे बड़ी सावधानी पूर्वक गुप्त रखना चाहती हूँ, परंतु धामधनी मेरे हृदय रूपी घर में बैठकर सागर की तीव्र लहरों की भांति उसे प्रवाहित कर वाणी के रूप में प्रकट कर रहे हैं। मेरे अंतरात्मा में बैठकर स्वयं धनी जी कहलवा रहे हैं, परंतु कहने का श्रेय मूर्ति के तरह मेरे शरीर को प्राप्त हुआ है। अन्यथा अखंड ज्ञान के ये वचन कैसे प्रकट होते, क्योंकि ये वचन कहते हुए मेरा कलेजा विदीर्ण हो जाता है। यह मत समझना कि मैं अचेत अवस्था में ये वचन कह रही हूँ, क्योंकि कहते हुए मेरी जीवात्मा ने बहुत कष्ट देखे हैं। जब मैंने आत्मा के साथ विचार करके देखा तो लगा कि मैं ये वचन कैसे कह रही हूँ। मेरी बुद्धि के द्वारा तो इस अखंड निधि का एक शब्द भी नहीं निकल पाता, परंतु धामधनी स्वयं ये वचन प्रकट कर रहे हैं। हे सुंदर साथ जी, अब इन वचनों को ग्रहण करने के लिए कुछ और प्रयत्न करो, ताकि तुम परम धाम की अखंड शोभा पूर्ण प्रेम प्राप्त कर सको। यदि विश्वास पूर्वक ग्रहण किए जाए तो ये वचन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। एक दृष्टांत देकर इनका महत्व बताऊंगी। हे मेरे परम धाम के प्राणाधार सुंदर साथ जी, सुनिए। शरीर से मस्तक को कोई अलग कर दे, फिर भी अखंड निधि का आधा वचन भी मुख से उच्चारित नहीं हो सकता। यहाँ तक कि यदि कोई लोहे के छड़े से पूरे शरीर को छेड़ डाले, फिर भी निश्चय ही आधा वचन भी नहीं कहा जा सकता। सुंदर साथ के साथ का मूल संबंध जानते हुए मैं ये वचन कह रही हूँ कि धामधनी को पहचान कर अखंड परम धाम को हृदय में रखो। इस प्रकार हाथ पकड़कर अखंड निधि दूसरा कोई नहीं देगा, और यदि कोई दे दे तो भी अभागा उसे ग्रहण नहीं कर सकता। हे मेरे शिरोमणि सुंदर साथ जी, इस दृष्टांत को विचार पूर्वक देखो। अब मैं सुखदेव मुनि के वचनों की साथी देकर इस प्रकार सीधा प्रकाश डाल रही हूँ। इस उदाहरण को देख विचार कर भ्रम दूर करो और जीव हृदय को थोड़ा कोमल बनाओ। जीवात्मा द्वारा इन वचनों पर विचार करो, तब जीव तुरंत ही धनी को पहचान लेगा। इस प्रकार धनी के स्वरूप की पहचान कर अंतरात्मा पर छाए हुए भ्रम को दूर करो। अपने आप को पहचानो एवं अपने घर प्रेम धाम को याद करो। अब अखंड घर प्रेम धाम की बातों का वर्णन किस प्रकार करूं, इसके बारे में प्रकाश के वचनों पर अंतरात्मा में विचार कर देखो। अब इस सरल दृष्टांत के विषय में सुनो। जीवात्मा को जागृत कर एकांत में एकाग्र चित्त होकर देखो।
14 लोकों के स्वामी विष्णु भगवान कहलाते हैं। वे सदैव वैकुंठ में अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। लक्ष्मी जी रात दिन उनकी चरणों की सेवा करती हैं। पूरी दुनिया में उनकी प्रसिद्ध हैं। जो सांसारिक जीव अपना कल्याण चाहते हैं, वैकुंठ धाम की इच्छा करते हैं, वे परमेश्वर के रूप में विष्णु भगवान की सेवा करते हैं। ब्रह्मा आदि देवों से लेकर नारद ऋषि, अन्य देवी देवताओं सहित अनेक मनुष्य उनकी सेवा करते हैं। इस ब्रह्मांड में रहकर सेवा करने वालों के कितने नाम ले, सब विष्णु भगवान की ही सेवा उपासना करते हैं। सेवा और उपासना करने पर भी वे उनका पार नहीं पा सकते। उनकी लीला अपार हैं। पहले भी कई भक्तों ने बहुत उपासना की। इसकी पुष्टि सुखदेव जी के वचनों से होती है। भगवान विष्णु इतने शक्तिशाली हैं कि वे अपने सेवकों के सभी कार्य सिद्ध कर देते हैं। जो विशाल बुद्धि के स्वामी विष्णु भगवान हैं, अब उनके ज्ञान तो भी देखो। एक बार भगवान विष्णु ध्यान लगाकर बैठे थे। ध्यान में ऐसे लीन हो गए कि शरीर की शुद्ध बुद्धि नहीं रही। इस प्रकार वे हमेशा ध्यान किया करते थे, किंतु इसके जानकारी किसी को भी नहीं थी। एक समय वे ध्यान में ऐसे तल्लीन हो गए कि प्रेम का प्रभाव उमड़ पड़ा। उस समय लक्ष्मी जी आ पहुंची और उनका मन आश्चर्य में डूब गया। लक्ष्मी जी पास में आकर खड़ी हो गई। ऐसे में भगवान विष्णु ध्यान में से जागृत हो गया। तब लक्ष्मी जी विनय पूर्वक कहने लगी कि मैं आपको छोड़कर अन्य किसी को महान और पूज्य नहीं देखती हूँ। हे भगवान, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? कृपया मुझे बताइए, क्योंकि मेरे मन में संदेह उत्पन्न हुआ है। आप मुझे यह कहकर समझाइए। हे भगवान, आप जिसका ध्यान करते हैं वह सर्व कहाँ निवास करता है? उसका स्थान कहाँ है? यह सब कृपया मुझे बताइए। मैं उनकी लीला अपने कानों से सुनना चाहती हूँ, इसीलिए बारंबार आपके चरणों में गिरकर प्रणाम करती हूँ। तब विष्णु भगवान ने बोले, हे लक्ष्मी जी, मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। इस ध्यान लीला के विषय में प्रथम कल्प में शिवजी ने भी मुझे पूछा था, परंतु इस लीला के विषय में मुझे कुछ भी पता नहीं है, तो उसे अपने मुख से कैसे कहूँ? हे लक्ष्मी जी, मेरे बात सुनो। इस प्रकार के वचनों का उच्चारण नहीं करना। तुम इसके अतिरिक्त जो कुछ भी कहोगी उसे मैं करूँगा, क्योंकि तुम मुझसे भिन्न नहीं हो। मुख से ऐसे वचन मत बोलो, अन्यथा बड़ी कठिनाई आ पड़ेगी। इस ब्रह्मांड के 14 लोकों के बारे में मुझसे पूछो, उनकी सब बातें मैं विस्तार पूर्वक कहूँगा। इस लीला के विषय में किसी भी प्रकार की आशंका मन में नहीं लाना और न ही कोई संदेह रखना। हे लक्ष्मी जी, तुम संतुष्ट रहो, क्योंकि ध्यान से संबंधित एक भी वचन मेरे मुख से बाहर नहीं निकलता। तब लक्ष्मी जी बहुत दुखी हुई और मन में विचार करने लगे कि अब क्या करूं। मेरे पति विष्णु भगवान मुझसे भी अंतर रखने लगे, अब मैं क्या करूं। लक्ष्मी जी के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी और बारंबार विनय पूर्वक कहने लगी, हे स्वामी, यह अंतर मुझसे सहन नहीं होता। इसके कारण मेरा जीव आकुल व्याकुल हो रहा है। यह दुख मुझसे सहा नहीं जाता। मेरा कलेजा कतता जा रहा है। वह अत्यंत व्याकुल होकर कांपने लगी। लंबी सांसें लेकर उनका हृदय अंतर्ग्लानि से भर गया। हे स्वामी, यदि आप मुझे संभालना चाहते हैं तो आपको निश्चय रूप से ये वचन कहने पड़ेंगे। आपने मुझे बहुत रोका तथा अनेक प्रकार के उपदेश भी दिए, किंतु मेरा जीव किसी भी प्रकार से नहीं रह सकता। लक्ष्मी जी ने बारंबार इस प्रकार कहा। तब पुनः भगवान विष्णु कहने लगे कि हे लक्ष्मी जी, तुम निश्चित मान लो,
यदि करोड़ों उपाय करो फिर भी इसे निश्चित मानना कि ये ध्यान के वचन मेरी जीवा पर कभी नहीं आएंगे। इस वास्तविकता को हृदय में दृढ़ रूप से ग्रहण कर लो। लक्ष्मी जी कहती हैं, हे स्वामी, अब सुनिए, मेरे हृदय में भयानक अग्नि जल रही है। इसमें आपका दोष भी क्या है? वस्तुतः मेरे लिए यह अप्राप्त दिखाई देता है। अब मेरा शरीर कैसे जीवित होगा? मेरा जीव मुझे भीतर ही भीतर जला रहा है। इसीलिए हे मेरे धनी, अब तो मैं आपसे आज्ञा मांगती हूँ कि कहीं जाकर तप करना आरंभ करूँ। तब विष्णु भगवान तत्काल बोले, हे लक्ष्मी जी, देर मत करो। इसे सुनकर लक्ष्मी जी अत्यंत दुखी हुई और उनका जीव तड़पने लगा। परिणाम स्वरूप उनके मन में आघात पहुंचा और वैराग्य उत्पन्न हो गया। लक्ष्मी जी को पूर्ण आशा थी कि उनके धनी विष्णु भगवान इस प्रकार उनसे भेद भिन्नता नहीं रखेंगे। चरणों में प्रणाम करके लक्ष्मी जी ने प्रस्थान किया और मार्ग में रुदन करते हुए पैदल ही आगे बढ़ी। इस समय लक्ष्मी जी ने अत्यंत विरह किया। उनकी पुकार का मैं कितना वर्णन करूं। वह एक स्थान केतुमाल खंड पर देह दमन करके विष्णु भगवान पर पूर्ण स्नेह रहकर तपस्या करने लगी। उन्होंने हवा, आंधी, तूफान, भयंकर ठंडी और अत्यंत गर्मी की परवाह नहीं की। ये सब सहन करते हुए अत्यंत तल्लीन होकर तपस्या करने लगी। इस प्रकार विष्णु भगवान के प्रति प्रेम धारण करके एकांत में बैठ गई। इतने में 7 कल्पांत बीत गए। तब ब्रह्मा जी तथा क्षीर सागर दोनों मिलकर विष्णु भगवान के पास वैकुंठ गए और कहने लगे, हे स्वामी, इतना बड़ा उत्पात क्यों मचा रहे हैं? लक्ष्मी जी 7 कल्पों से तप कर रही हैं। तब विष्णु भगवान ने उत्तर दिया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। पुनः उन दोनों ने कहा, हे प्रभु, आप स्वामी हैं, इसलिए आपसे ही पूछना चाहिए कि लक्ष्मी जी किस कारण दुखी हो रही है। क्षीर सागर ने कहा, हे भगवान, आप इतना अधिक क्रोध न करें, लक्ष्मी जी पर अनुकंपा करें, क्योंकि आप ब्रह्मांड के अधिपति हैं और बड़े दयालु हैं। मेरी पुत्री लक्ष्मी जी दुखित हो रही हैं, इसीलिए आप आधे क्षण का भी विलंब न करें, लक्ष्मी जी को तुरंत ही बुला ले। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए क्षीर सागर ने विष्णु भगवान के चरण पकड़ लिए। ब्रह्मा जी भी बारंबार इसी प्रकार की प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु, आप लक्ष्मी जी के पास चलिए तो सही, वहां जाकर उन्हें बुला लाते हैं। तब जहां लक्ष्मी जी तपश्चर्या कर रही थी, उस स्थान की ओर विष्णु भगवान चल पड़े। वहां पहुंचने पर लक्ष्मी जी ने प्रणाम किया। इसके बाद विष्णु भगवान बोले, हे लक्ष्मी जी, अब तुम घर चलो। तब लक्ष्मी जी ने उन्हें पुनः इस प्रकार कहने लगी, हे मेरे स्वामी, आप मुझे ध्यान के वही वचन कहें, क्योंकि मेरे जीव और मन अत्यंत दुखी हो रहे हैं। प्रत्युत्तर में भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम 21 कल्प तक भी तपस्या करती रहोगी, फिर भी इस ध्यान की बात कहने में मेरे जीव असमर्थ रहेंगी। परंतु इतना निश्चित है कि उस लीला का अभिनय चरित्र कर मैं स्वयं तुम्हें दिखा दूंगा, तब तुम उसे चित्त में धारण कर लेना। तब ब्रह्मा जी और क्षीर सागर दोनों लक्ष्मी जी से इस प्रकार कहने लगे, हे लक्ष्मी जी, अब आप तुरंत ही खड़ी हो जाइए। दया के सागर स्वामी ने आप पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए अब आप हट छोड़ दे और अपने मन में अत्यधिक प्रसन्नता धारण करें। तब लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरणों से लिपट गई। इस प्रकार आनंद पूर्वक लक्ष्मी जी को घर ले आए। ब्रह्मा जी तथा क्षीर सागर दोनों ने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम कर अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान किया। हे सुंदर साथ जी, अब तुम इस दृष्टांत पर विचार करो और अंतर्दृष्टि से देखो कि
उस लीला को कहने में वैकुंठ के अधिपति विष्णु भगवान की जीवा भी असमर्थ हो गई। उन्होंने ध्यान में अमूल्य वस्तु ग्रहण की, किंतु उनके विषय में निश्चय ही एक वचन भी नहीं कहा। अन्यथा वैकुंठ के अधिपति विष्णु भगवान को अद्वैत घर की शुद्धि कहाँ है? तारतम ज्ञान के बिना मूल घर प्रेम धाम की लीला कौन जान सकता है? उन्होंने अन्य कोई भी स्पष्टता नहीं की, तथापि महान निधि समझकर उसे ग्रहण किया। योग्य पात्र के बिना उचित भार उठाया नहीं जा सकता। अर्थात अखंड निधि के महत्व को अखंड धाम के रहने वाले ही जान सकते हैं। इस विषय में मुख से वचन नहीं निकल सकते। जब द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतरण हुआ, तब मुरारी श्री कृष्ण ने विदर्भ की राजकुमारी रुक्मणी का हरण किया। माधवपुर में श्री कृष्ण ने रुक्मणी के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। उस समय सुहागनियां बधाई के गीत गा रही थी। गीत गाते गाते उन्होंने जब अखंड ब्रज का नाम लिया, तब तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण उन शब्दों को सुनकर मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़े। उस समय सबके मन में आश्चर्य हुआ। इस प्रकार लीला अभिनय करके विष्णु भगवान ने रुक्मिणी जी अथवा लक्ष्मी जी को ब्रज की लीला का महत्व दिखाया। विष्णु भगवान ब्रज के स्वरूप का ही ध्यान करते थे। इस तथ्य को संकेत द्वारा रुक्मिणी जी को बता दिया। फिर भगवान विष्णु शांत होकर बैठ गए। इस प्रकार लक्ष्मी जी को मनोकामना पूर्ण की। हे सुंदर साथ जी, इस दृष्टांत को आप शांत चित्त होकर विचार पूर्वक देखो। इस लीला का वर्णन सुखदेव जी ने किया है। उपर्युक्त चरित्र के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को जिस अखंड ब्रज लीला का महत्व दिखाया है, उसी ब्रज लीला में हम भी सम्मिलित थे। इसीलिए आपको ये वचन कहे जाते हैं, अन्यथा इन वचनों का लवलेश मात्र भी प्रकट नहीं होता। हे ब्रज वल्लभ, श्री कृष्ण सदगुरु बनकर आए हैं और हमें ये वचन कह रहे हैं। जिस स्वरूप ने वृंदावन में अखंड रास की लीला दिखाई, उन्होंने ही यहाँ नवतनपुरी में आकर उस लीला को प्रकट किया। वही परम धाम के धनी कहलाते हैं। वही अभी हम सब के बीच आकर बैठे हैं। इस रहस्य को समझाने के लिए तुम्हें यह दृष्टांत दिया गया है। एकाग्रचित्त हो, एकांत में बैठकर इन वचनों पर विचार करो। वैकुंठ धाम जैसा वह स्थान और भगवान विष्णु जैसे वक्ता का यह प्रसंग है। इस तथ्य को जानने के लिए लक्ष्मी जी वहाँ श्रोता बनी है और उन्होंने अनेक कष्ट भी सहन किए, फिर भी वे इस अखंड लीला रहस्य का एक भी वचन प्राप्त नहीं कर सकी। हे सुंदर साथ जी, विचार करो कि तुम कैसा अखंड धन प्राप्त लेकर बैठे हो। अभी तक तुम अपना भ्रम दूर नहीं कर रहे हो। अपने कठोर हृदय जीव को कब तक द्रवित नहीं करोगे। यह नगरी पवित्र नवतनपुरी कहलाती है, जहाँ सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने आकर लीलाएं की। ऐसे अपार प्रत्यक्ष वचन कहे जा चुके हैं, तथापि तुम सावधान नहीं हुए। तुम माया के नशे अमल को अच्छी तरह उतारो और इन वचनों को चित्त में धारण कर जीव को जागृत करो। हे सुंदर साथ जी, मोह से अलग होकर तारतम ज्ञान के प्रकाश में इस माया के खेल को देखो। धामधनी सदगुरु ने जो ज्ञान दिया है, उसे जीवात्मा को क्यों नहीं देते। अब सब गुण अंग इंद्रियों को अपने नियंत्रण में लो और अपने प्रियतम धनी प्राणनाथ को पहचानो। हे साहब जी, जीवात्मा द्वारा इतना तो सोचो कि हमारे प्राणाधार धामधनी ने हमारे लिए कैसे वचन कहे हैं। जब तक जीव अंतर्मन से विचार नहीं करता, तब तक उसके वही स्थिति होंगी जो चिकने घड़े पर गिरी हुई बूंद की होती हैं। अथवा माया में लिप्त जीव को सदगुरु का एक भी वचन प्रभावित नहीं करता। इंद्रावती कहती हैं,
मैं परम धाम के सुंदर साथ के चरणों में नतमस्तक होकर कहती हूँ, तुम सब सावधान होकर मेरी बात सुनो। बारंबार यह अवसर मानव शरीर की प्राप्ति और तारतम्य ज्ञान प्राप्त नहीं होता, इसीलिए मायावी इच्छाओं को लिए बिना परम धाम में जागृत हो जाओ। मैंने संक्षेप में ही बहुत कुछ कह दिया है। स्वयं परिचित सदगुरु धन को तुम क्यों खो रहे हो? पहले तो हम सब धनी जी से अलग हो गए। पूर्ण परिचय न होने के कारण सदगुरु के वचनों से दूर रहे। इसी कारण देवचंद्र जी महाराज की उपस्थिति से वंचित हुए, अर्थात वे हमें छोड़कर चल गए। यदि हम सब ने उनके साथ प्रेम किया होता तो वे हमें त्याग कर क्यों चले जाते? अब पुनः दूसरा शरीर धारण कर वे हमारे अंतःकरण में विराजमान हुए हैं। इस प्रकार उन्होंने हम पर बड़ी कृपा की है। तारतम्य ज्ञान द्वारा हमें सचेत कर जागृति के लिए यह सुअवसर दिया है। अब इस अवसर का लाभ लेकर प्रेम धाम में जागृत हो जाओ। यदि इस दृष्टांत को अंतर्मन से विचार करोगे तो सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। इसीलिए इंद्रावती बारंबार कह रही हैं कि धामधनी ने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। यदि इस दृष्टांत को अंतर्मन से विचार करोगे तो सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। इसीलिए इंद्रावती बारंबार कह रही हैं कि धामधनी ने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। धामधनी ने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है, बहुत बड़ी कृपा की है। चौपाई 68 प्रकरण 29 चौपाई 7 से 41। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।